This morning, if you have your Bible, would you turn with me to John chapter 14? और अगर आज सुबह आपके पास बाइबल्स हैं तो आप यूहन्ना उसका 14 खोल सकते हैं We'll be reading from verse 1 to 9. और हम पहले वचन से 9वें वचन तक पढ़ेंगे। We don't have a PowerPoint this morning, but we will all open our Word of God. और पावर पॉइंट नहीं है हमारे पास से सुबह, पर हम अपने वचनों को खोलेंगे We'll all follow what is it written. और हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है उसमें। Verse 1. पहला वचन। It's good to hear the pages turning. और मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं पन्नों को पलटता हुआ सुन रहा हूँ। Verse 1, it says, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me." तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Verse 3. और तीसरा वचन। And if I go and prepare place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am going, you may be also. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। And you know the way to where I am going. और जहाँ मैं जाता हूँ तुम्हें वहाँ का मार्ग जानते हो। Thomas, the apostle, और जो थोमा है, जो प्रेरित था, the one who came to India, जो भारत आया था, because of his ministry, today we are seated comfortably. और उसकी सेवकाई के द्वारा हम लोग आराम से यहाँ बैठे The हुए हैं। word received, the India received the word of the Lord और भारत ने परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण किया, because Thomas came. क्योंकि थोमा आया। Is the same Thomas और ये वही थोमा है said to Jesus, जिसने यीशु मसीह से बोला, Lord, we do not know where you are going. उसने बोला, परमेश्वर, हम हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि तू कहाँ जा रहा है, How can we know the way? तू मार्ग कैसे जाने। Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, I am the way, मार्ग I am the truth, और सत्य and I am the life. और जीवन मैं ही हूँ। No one comes to the Father बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास except through me. नहीं पहुँच सकता। If you had known me, और यदि तुम मुझे जानते you would have होते known my Father also. तो मेरे पिता को भी जानते। From now on, और अब से you do know him उसे and have जानते seen हो him. और उसे देखते भी हो। Philip, और फिलिपुस, another disciple of Jesus, और एक और जो प्रेरित था यीशु said मसीह to का, him, उसने उससे कहा, Lord, show us the Father and it is enough for us. और हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Jesus said to Philip, और यीशु ने उससे कहा, Have I been with you so long and you still do not know the Father? Oh, sorry, और- you do not know me, Philip? हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू नहीं जानता? Whoever has seen me, seen the Father. How can you say, show us the Father? जिसने मुझे देखा है उसने अपने पिता को देखा है, तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? This morning, और इस सुबह may each of us be blessed in hearing and listening of God's word. हम में से हर एक आशीषित हो परमेश्वर के वचन को सुनने में। There is power in God's word, और सामर्थ है परमेश्वर के वचन में, in reading of His word, और उसके वचन के पढ़ने में, in a public reading of His और word. जब हम समूह में पढ़ते हैं And this परमेश्वर के morning, वचन। you know, we are celebrating Good Friday. और हम सब जानते हैं कि हम आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, But you see, it was not good for them. पर वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था, For the ones who actually gave up their life to follow this Jesus, and he's saying now he's going, their hearts are troubled. और वो उसी यीशु मसीह के लिए जिसके अपना जीवन दिया था, उसको जाता हुआ देख रहे हैं और उनके हृदय विचलित हो रखे It हैं, was not good. और वो अच्छा नहीं था, The city was in uproar.
और जो पूरे शहर था वो तहस नहस हो रहा था Everyone shouting, "Crucify Jesus." और सब चिल्ला रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूसित करो Everyone is viewing him being beaten with the chains and the blood dripping. और सब उसे कोड़े खाते हुए देख रहे हैं और खून उस पर से बह रहा था Everyone seeing him carrying the cross and walking on the way to Golgotha. और सब उसे उस क्रूस को उठा के जाते हुए देख रहे हैं गोलगता की तरफ It was not so good. और वो इतना अच्छा नहीं था But why it became so good? पर फिर वो अच्छा कैसे हुआ Bible says because Jesus Christ rose from dead. Hallelujah. क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह क्रूस मृत्यु में से जी उठा You see, our faith only stands because he died and he raised from the dead. और हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ इसलिए है क्योंकि वो मृत्यु को पाकर उसके बाद वो जी उठा So praise God, Sunday is coming. और परमेश्वर की महिमा हो कि संडे आ रहा That है we are not worshipping dead Jesus, but we are worshipping risen Jesus. तो हम Hallelujah. मृत्यु यीशु की आराधना नहीं करते हम जीवित यीशु की आराधना That we करते don't हैं have Jesus still hung on the cross, but we have Jesus. The cross is empty and he is seated in heaven. और Hallelujah. हम एक क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु की आराधना नहीं करते वो क्रूस खाली है और वो स्वर्ग में So विराजमान we है must be people with full of hope always. तो हम ऐसे लोग होने चाहिए जिनके अंदर आशा हमेशा रहती है But Jesus knew that our hearts get troubled at पर times. यीशु मसीह जानते हैं कि हमारे हृदय व्याकुल We हो get जाते हैं troubled. हम लोग व्याकुल हो जाते हैं Do you get troubled? क्या आप लोग व्याकुल हो जाते हैं विचलित हो जाते Do हैं you get troubled of thinking, how क्या- will I manage this month? और आप ये सोचते हुए परेशान हो जाते हैं कि मैं इस महीने में कैसे ये महीना कैसे You get गुजारूंगा troubled of many things. और आप बहुत सारी चीजों से परेशान हो But सकते this हैं morning, पर इस सुबह we could have looked at many things because it's a Good Friday. और हम बहुत सारी चीजों पर देख सकते थे क्योंकि ये गुड फ्राइडे है You know, last year we looked at Jesus's that last statement. You know, Teletestai means it is finished. और हमने पिछले सप्ताह देखा परमेश्वर का जो आखिरी शब्द है कि ये पूरा हुआ People look at that statement on Good Friday. और लोग गुड फ्राइडे में इस वचन को देखते The हैं idea is to reflect. और जो हम हमारी जो योजना होती है कि हम उस पर मनन करें Some they reflect the 7 sayings of Jesus. और कुछ लोग वो 7 वचन जो क्रूस पर बोले गए उस पर मनन करते हैं And yes, we did that throughout the last month or so. We've been looking of those 7 sayings of Jesus. और हम कुछ महीनों से पिछले महीनों से वो 7 वचन को देख रहे And हैं one of them falls here in this passage. I am the way, the truth, and the life. और इनमें से एक वचन ये है कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ Some looks at different things. और कुछ लोगों ने अलग अलग बातें बोली But did you read that beautiful scripture in Revelation 5? पर आपने वो खूबसूरत वचन पढ़ा जो कि प्रकाशित वाक्य 5 में था 7 horns. और वो 7 सींग You see 7 testimonies that confirm Jesus is the true Messiah. और वो 7 गवाहियां आप देखेंगे जो इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह ही सच्चा मसीहा है 7 is a number of perfection. और जो 7 नंबर है वो दिखाता है Jesus gave 7 perfection को sayings. Jesus gave 7 sayings. और यीशु मसीह ने 7 वचन बोले I am the Messiah. कि मैं ही मसीह हूँ But not only that. पर सिर्फ ये ही नहीं Do you know that Jesus gave 7 testimonies? क्या आपको पता है यीशु मसीह ने 7 गवाहियां दी And he said at least one of that you would believe. और उनने सोचा कि इनमें से एक पर तो आप विश्वास करेंगे He said if you do not believe my word, you believe in works. अगर तुम मेरे वचन पर विश्वास नहीं करते तो तुम कार्य पर विश्वास You can करोगे read John chapter 5. और आप यूहन्ना 5 पढ़ सकते The हैं Gospel of John is so beautifully written. और जो सुसमाचार है यूहन्ना का वो बहुत ही सुंदर तरीके से Everything लिखा है has meaning, everything has reason. और हर एक चीज की एक वजह है हर एक चीज की एक अर्थ है So in chapter 5, he reveals so many witnesses. तो 5वें वचन में वो इतनी सारी गवाहियां देता है He said, if you don't believe scripture, you would have believed John the Baptist. He is the true witness. और मैंने कहा अगर तुम इन वचनों पे यकीन नहीं करते तो तुम यूहन्ना If बपतिस्मा you देने don't- वाले पे विश्वास If you करोगे don't believe the miracles, you will believe in the Holy Spirit who bears my witness. और अगर तुम कार्यों पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम पवित्र आत्मा पे विश्वास करोगे जो मेरी गवाही देता है Jesus didn't leave anything to prove them that he is the promised Messiah. और यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं ऐसा नहीं छोड़ा ये साबित करने के लिए कि वो ही वो वाचा दिया हुआ
मसीहा And है। he has a book, Revelation 5. और एक हमारे पास किताब है जो है And प्रकाशित वाक्य the 5 में। Father's will is that none should be erased or none should not be there in the book. और पिता का यही इच्छा है कि कोई भी मिटाया ना So जाए, you कोई भी can नाश ना हो। imagine तो आप ये सोच सकते हैं Jesus doing everything. यीशु मसीह हर चीज कर रहे हैं। But you know, to his disciples, he also closely revealed many things. और अपने चेलों से उसने करीब आकर बहुत सारी चीजें प्रकाशित करी। There was a world outside and there was a world within. तो एक दुनिया बाहर थी और एक दुनिया अंदर थी। The world outside was not viewing why Jesus is going on the cross. और जो बाहर की दुनिया थी वो ये नहीं देख पा रही थी कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे हैं। Yet world inside, even knowing, not believing why Jesus is doing what he और जो is अंदर की doing. दुनिया थी वो जानते हुए भी नहीं विश्वास कर पा रही थी। And yet there are some knowing that Jesus is the true Messiah. और फिर भी कुछ लोग थे जो विश्वास करते कि यीशु ही सच्चा मसीहा It है। depends in which category we fit in. और ये निर्भर करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। But what I am focusing this morning, तो मैं किस चीज पर केंद्रित हूँ इस because we सुबह? could have looked at the 7 testimonies और of हम वो Jesus. 7 गवाहियां देख सकते थे। We are, in a way, we are still looking in 7 sayings. One of the saying this morning. और उन 7 गवाहियों में से एक गवाही हम आज सुबह देख रहे हैं। We could have looked at the last word on the cross. शायद हम वो आखिरी वचन देख सकते थे जो क्रूस पर बोला But do गया। you know what we are looking this morning? पर आपको पता है इस सुबह हम क्या देख रहे We are हैं? looking the last words of Jesus. हम आखिरी वचन देख रहे हैं यीशु मसीह के। So if someone wants to leave, अगर कोई जाना चाहता है, if someone is going, अगर कोई जा रहा है, their last few words are very important. तो उनके कुछ आखिरी वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होते You हैं। are going on a journey. आप एक सफर पर जा रहे हैं, Have you heard your mother is going on journey या आपकी माता एक सफर पे जा रही हैं and she says, don't forget that. और वो कहेंगे कि ये चीज मत भूलना Remember to eat food. और खाना खाना मत भूलना, Remember I have kept the food in the fridge. और मैंने खाना फ्रिज में रखा हुआ है। You will hear some of the important statements. और वो कुछ जरूरी बातें बताएंगे। So that's the reason we are looking at this read passage. और इसलिए आज सुबह हम इस पढ़े हुए It's वचन को देख actually रहे हैं। part of the last supper of with Jesus. और वो प्रति भोज के आखिरी समय की बात है। But do you know how it begins? पर आपको पता है कैसे शुरू हुआ? Because he is now revealing some of the crucial things to his disciples. तो इस समय वो कुछ ऐसी जरूरी बातें प्रकाशित कर रहा है अपने And चेलों को। you wouldn't have seen it like this. और आपने इसे इस तरीके से नहीं देखा Because होगा। what he is really doing, क्योंकि वो जो सच में कर रहा he है is showing I am the way, वो दिखा रहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ and I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। But do you know he is not just revealing this by statement, और वो सिर्फ बोलने से ये चीज नहीं प्रकाशित कर रहा, but he first revealed in action, पहले उसने अपने कार्यों में ये चीज प्रकाशित which की। you may have missed out. और शायद आप उससे चूक गए And होंगे। this morning, और इस सुबह my joy is to reveal that to you. और मेरा आनंद होगा कि मैं आपको वो Because दिखा when सकूं, we see that, क्योंकि जब हम वो we देखेंगे get caught up in this amazing God. हम उस अद्भुत परमेश्वर में रहेंगे We get caught up in his love. और हम उसके प्रेम में रहेंगे। We think of how amazing he is. हम ये सोचेंगे वो कितना अद्भुत है। So first of all, तो सबसे पहले let's read John 13, तो हम देखेंगे यूहन्ना उसका 13 verse 1. उसका पहला वचन, This is powerful. और ये बहुत ही सामर्थी है। Now, before the feast of Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world, the Father depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। Do you know Jesus' love will be there till the end? आपको पता है सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम है जो अंत तक रहेगा। You may love someone, their love may fail. और आप किसी से प्रेम करेंगे और वो प्रेम हार जाएगा। Our parents' love may fail. हमारे माता पिता का प्रेम भी सफल ना But रहे। let me tell you, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ Jesus' love is
till the end. पर यीशु मसीह का प्रेम अंत तक रहेगा। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं? Having known his own, he loved them till the end. और ये जानते हुए भी कि वो अपने थे, उसने अंत तक उनसे प्रेम रखा। Jesus loves you और यीशु मसीह आपसे प्रेम रखता है and he loves you till the end. और वो आपसे अंत तक प्रेम रखेगा। Some of you thinking, Jesus stopped loving me because of what I am doing. और कुछ लोग ये सोचने लगे कि शायद प्रेम करना यीशु मसीह ने छोड़ दिया है क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ। That's lie. वो झूठ है। Jesus loves till the end. यीशु मसीह अंत तक How प्रेम do we know करता है। that? और हम ये कैसे जानते हैं? The cross. क्रूस के He द्वारा। bled till every last blood. और वो अपनी खून की आखिरी कतरे तक उसका खून He बहता है। loves you till the end. वो अंत तक आपसे प्रेम रखता है। Some of you, we will look at, और हम में से कुछ देखेंगे, you worry आप लोग चिंता करते that हैं। I might be one of those stories that I started well but I didn't finish well. मैं उनमें से कुछ हो सकता हूँ जिसने शुरुआत तो अच्छी की पर अंत अच्छा नहीं हुआ। But do you know God loves you till the end? पर आपको पता है यीशु मसीह आपसे अंत तक प्रेम करता है। And he, through him, we can finish till the end. और आपको पता है कि उसकी वजह से हम अंत तक पहुंचेंगे। But as we look at this morning, और जब हम इस सुबह देखते हैं, firstly, Jesus is revealing the way. सबसे पहले यीशु मसीह मार्ग दिखा रहे हैं। What does he do that after loving his own till the end? और वो क्या करता है अपने लोगों से प्रेम करने के बाद अंत तक? He is doing number of things on this evening, having meal. और इस शाम को जब वो भोजन खा रहा है तो वो बहुत सारी चीजें कर रहा है। He is doing number of things. और वो बहुत सारी चीजें कर रहा What है। does he do first? सबसे पहले वो क्या करता He है? shows them the way. वो सबसे पहले उन्हें वो मार्ग दिखाता है। What does he do by showing the way? और वो क्या करता है वो मार्ग दिखा के? He picks up a towel वो एक तौलिया उठाता है and he washes the disciples' feet. और वो उन चेलों के पैर धोता है। You see, disciples are not really understanding many things. और जो चेले हैं वो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पा रहे And हैं। it's not to blame. If we would be there, we wouldn't have get it as और हम well. इल्जाम नहीं डाल सकते, अगर हम वहां होते तो हम भी नहीं समझ पा रहे होते। And on this evening, it starts with this way that we do not understand. और इस शाम को ये शुरू होता है इस मार्ग से जो हम नहीं समझते। First of all, it's Passover. और सबसे पहले ये फसह का पर्व है। Everything of Jesus is symbolically rooted in the Old Testament. और हर एक चीज जो यीशु कर रहा है वो एक चिन्ह है जो पुराने नियम में बताया Remember, गया है। John the Baptist says, He is the Lamb that takes away the sins of the और world. आपको याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहता है कि ये ही वो मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। We read in the Revelation 5, He और- is the Lamb seated on the throne. और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5 में कि वो ही वो मेमना है जो सिंहासन पर विराजमान है। And so, there is an exodus happening. तो हम यहाँ एक निर्गमन होता हुआ देख रहे हैं। But this exodus is not of Moses' exodus, और ये मूसा के निर्गमन जैसा but नहीं is the है, exodus of Jesus. बल्कि ये निर्गमन है ये यीशु मसीह का। Here is not a Pharaoh, और वो यहाँ पे कोई but Pharaoh Jesus नहीं है। is bringing his people out of hands of Satan. पर यीशु मसीह अपने लोगों को शैतान के हाथों से बाहर ला रहा है। And he's saying, it is not the blood of the on the doorpost of bulls or ram, it will be my own blood. और वो ऐसे कहता है कि वो किसी जानवर का खून नहीं है जो आपके द्वार पर लगा होगा, वो मेरा खून है जो उस द्वार You पर see, लगा they होगा। should have got it, और उन्हें उस समय वो समझ जाना चाहिए knowing था। the scripture, उसने वचन को जानते हुए, knowing everything, हर चीज को जानते हुए, but they missed on. पर वो उससे चूक गए। They missed on many things. और वो बहुत सारी चीजों से चूक गए। But Jesus is doing an exodus that is far more important. जो निर्गमन यीशु मसीह कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Deliverance. और वो है छुटकारा। That is far more important than deliverance out of Egypt. और ये छुटकारा उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मिस्र से हुआ था। And that deliverance is from death and sin. और वो जो छुटकारा है वो मृत्यु और पाप से है। Jesus knew that his hour had come, और यीशु मसीह जानते थे कि उनका समय आ गया है that he would leave this world to go to Father. और वो इस दुनिया छोड़कर अपने पिता के पास जा रहे हैं। Having loved his own, उनने अपने को प्रेम किया he loved them till the end. और उनने अंत तक उनसे प्रेम किया। And so
this deliverance is far more important. तो ये छुटकारा और ज्यादा महत्वपूर्ण है, Because you know what? क्योंकि आपको पता है क्या, They did not understand. वो लोग ये नहीं समझे, They thought they will be delivered politically. उन्हें लगा था कि वो सरकारी तौर से या जो पॉलिटिक्स चल रहा है उससे छुटकारा पा लेंगे, That their time will come. कि उनका समय आएगा। How many of us understand that? और हम में से कितना ये बात We, समझते हैं, we think that we will be delivered from these political issues. और हम सोचते हैं कि हम सब छुटकारा पाएंगे इस संसार में चल रहा है And उससे, our kingdom will come. कि हमारा राज्य आएगा। No. नहीं, Because Jesus's way is completely different. क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग बिल्कुल ही अलग था। You see, his way, you will be surprised, is different. आप देखेंगे, अचंभित होंगे कि उसका मार्ग कितना अलग था। If you caught up on his way, अगर आप उसके मार्ग को पकड़ लेते your हैं, life will be different. आपका जीवन भी अलग होगा, Because it is possible क्योंकि ये मुमकिन है that we and Jesus can be on a different way. हो सकता है हम और यीशु मसीह अलग अलग मार्ग में हों, They are thinking that politically the king will deliver us. और उन्हें लगा था कि एक राजा सरकारी तौर से, पॉलिटिकल तौर से हमें छुटकारा देगा, But Jesus is interested in the deliverance that is far beyond. पर यीशु मसीह दिलचस्पी रखता है उस छुटकारे में जो और भी बढ़कर था। Because guess what? क्योंकि सोचिए, A people can be delivered politically, और लोग पॉलिटिकली छुटकारा तो पा सकते हैं, yet with sin पर फिर पाप के साथ will land up in so much mess. वो वापस और ज्यादा संघर्षों में गिर जाएंगे। A nation, India, can be delivered politically from the hands of Britain, और हाँ, जो भारत देश है वो बचाया जा सकता है राजनीतिक तौर से ब्रिटिश लोगों के हाथों से, remain sinful, और फिर भी पापी रह सकता है, can land up in mess. और फिर भी उस अंत की तरफ बढ़ So सकता है। Jesus is doing something very important deliverance. तो यीशु मसीह जो छुटकारा कर रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Is to set you and I out of sin, तो वो हमें छुटकारा दे रहा है पाप से, out of death. और वो भी मृत्यु से, And people are not getting it. और लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं। So he started doing these 4 things. तो यीशु मसीह ने ये 4 चीजें करी, And this 4th thing is where we see the way, the truth and the life. और ये 4 चीजों में हम देखते हैं कि वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। Number 1, सबसे पहले through the way that Jesus is doing, जिस मार्ग से यीशु जा रहा है, he begins washing the disciples' feet. वो मार्ग ये है, वो रास्ता ये है कि वो चेलों के पैर धोता है। Number 2, he exposes Judas and his trickery. और जो यहूदा स्क्रूति है और उसकी चालाकी है, वो उस चीज को रोशनी में लाता है। The word trickery, right word in Hindi is kapat. और जो ट्रेकरी है, जो शब्द है, उसका मतलब है कपट, And we will look at that quickly. और हम जल्दी से देखेंगे। But then third thing, he also exposes Peter's weakness. पर तीसरी चीज वो क्या करता है, वो प्रकाशन में लाता है पतरस की कमजोरी भी। So the first is the way. तो पहली चीज है मार्ग। By washing his disciples' feet, Jesus is showing my way is different. और जब वो चेलों के पैर धोता है, वो दिखाता है कि मेरा मार्ग अलग है। By revealing, exposing Judas the Iscariot and the weakness of Peter that he is going to deny. और ये जो प्रकाशन में लाता है यहूदा स्क्रूति की जो कपट है और जो पतरस की कमजोरी है, Jesus is bringing truth. तो यीशु मसीह सत्य को सामने ला रहा Yes, है। Judas will betray me. और हाँ, यहूदा स्क्रूति उसे धोखा देगा, Yes, Peter will deny me. और हाँ, इनकार करेगा पतरस उसका, But towards the end, पर अंत में he also reveals the life. वो अंत में जीवन का भी प्रकाशन And देता the है। life is in knowing the Father. और जो जीवन है वो है पिता को जानने में। So you have the way, the truth, and the life. तो आपके पास मार्ग है, सत्य है और जीवन है। Firstly, सबसे पहले, he began washing the people's feet. और सबसे पहले वो चेलों के पैर धोता है, No one could have thought about that. और किसी ने इस बारे में नहीं सोचा होगा, No disciple thought about और that. किसी चेले ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। That hey, first of all, this house there is no servant. पहली चीज, इस घर में कोई भी सेवक नहीं है, Jesus borrowed this house for this meal. और यीशु मसीह ने ये घर लिया है कि वो भोजन कर सके। So
he definitely have not hired servant. तो हाँ, वहाँ पे कोई सेवा करने के लिए नहीं है। In the Middle Eastern culture, और जो वहाँ का जो कल्चर था, there is a lot of sand. वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है। People walk in the dust. लोग बहुत सारी धूल में चलते हैं। They take a bath in the morning. और हाँ, वो सुबह स्नान लेते हैं। There was no private bath. पर कोई अपना किसी का खुद का स्नान की जगह नहीं थी। They would take public bath. और वो जो सामाजिक जगह पे जो And so स्नान लेते थे वहाँ जाते They थे are clean. और वो साफ हैं। But now, पर अब when they walk through the desert, पर जब वो रेगिस्तान से होते हुए जाते their हैं, legs will be dirty. उनके जो पैर हैं वो गंदे हो जाएंगे। And so as soon as they would come, there would be servants to wash the और feet. जैसे ही वो आएंगे वहाँ सेवक होते थे जो उनके पैर धोते थे। But here there is no servant. पर यहाँ पे कोई भी सेवक नहीं And so है। Jesus, taking the form of very nature as servant, तो यीशु मसीह ने वो रूप लिया एक सेवक का, the King of Kings, जो राजाओं का राजा है, the one day will sit on the throne and judge nations. और एक दिन जो सिंहासन पे बैठकर न्याय करेगा देशों का। And so his way तो उसका मार्ग, is humility. उसका मार्ग है दीनता। Bible says, to men there are ways that seems right. और वचन कहता है कि कुछ ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को तो सही लगते हैं। In Proverbs 14:12, और वो ऐसा कहता है नीति वचन 14 उसका So- 12 में। anyone can take the way, तो कोई भी मार्ग ले सकता है, कोई but भी। how it is found, whether that way is right or not, whether you reach on the desired end. और वो जानते हैं कैसे कि वो सही मार्ग है जब हम वो उस सही नियुक्त जगह पर पहुंचते And so हैं। that is what it's saying, तो ऐसा यहाँ कह रहा है। that there is a way that seems right और एक मार्ग है जो सबको सही लगता for है, man, वो है मनुष्य के लिए, but its end leads to death. पर जो उसका अंत है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। But Jesus is saying, पर यीशु मसीह कह रहे हैं, if you take my way, अगर तुम मेरा मार्ग लेते हो there is 100% desired destination. तो 100% तुम जिस नियुक्त जगह पे पहुंचना चाहते हो And वहीं he पहुंचोगे। started doing things और वो ऐसी चीजें करने लगा that would be out of their mind. जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। So he came to Peter, तो वो पतरस के पास आते and हैं Peter said, I don't want to be washed. और पतरस कहता है कि मैं नहीं चाहता तू मेरे पैर I don't धोए, want you to touch my feet. मैं नहीं चाहता कि तू मेरे पैर छुए They are भी, dirty. वो गंदे हैं, I don't want you to wash. और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पैर धोएं। To that respond, और उस चीज का प्रति उत्तर Jesus said something very important. यीशु मसीह ने भाई एक बहुत ही जरूरी बात बोली। He said, if you don't understand my way, अगर तुम मेरे मार्ग को नहीं समझे, if I don't wash your feet, अगर मैं तुम्हारे पैर नहीं धोता, you have no part with me. तो आपका कोई हिस्सा नहीं है मेरे साथ। You know, this is things happening on the same night आपको पता है ये एक ही रात में ये सारी चीजें घट रही हैं, before the cross. वो भी क्रूस पर जाने से पहले। And when Peter heard that, और जब पतरस ने ये सुना, Peter loved Jesus. पतरस यीशु मसीह से प्रेम He करता said, था। then wash me, Jesus. I want to be fully part with you. तो पतरस ने कहा मुझे पूरा धो दे कि मैं पूरा तेरे में भी हिस्सा You रहना see, चाहता those हूँ। who love Jesus will go all out to follow that way. और जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ते उसके पीछे जाने के लिए। And so Jesus said, you don't need a bath तो उसने कहा तुम्हें स्नान की जरूरत नहीं है because you are clean. क्योंकि तुम साफ हो, But what do you need? पर तुम्हें क्या चाहिए? Your only legs are clean, not clean. बस तुम्हारे पैर अभी गंदे हैं। So what is that way? तो वो मार्ग क्या है? Jesus is saying यीशु मसीह कह रहे हैं that we get dirty कि हम गंदे हो जाते हैं while visiting things, जब हम गलत जगहों पर जाते हैं, and we need washing. और हमें वो धुलाई की जरूरत है, And that is the way. और वही मार्ग है। Now you can count me on this. अगर आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं इस बात Anytime, पे, whether dream or in illustration, if Jesus uses the way, he speaking about your lifestyle. और जब भी यीशु मसीह मार्ग या रास्ते की बात करता है वचन में, तो वो आपकी जीवन शैली की You बात can करता है। replace your lifestyle. वो आपके जीवन शैली की बात If करता है। Jesus is your lifestyle, अगर यीशु मसीह आपकी जीवन शैली है then you will be cleaned. तो आप साफ होंगे। Hallelujah. हालेलुया।
But if the moment you shift little bit out of Jesus, और आप थोड़ा सा जब यीशु मसीह के बाहर जाते हैं we get dirty. हम गंदे हो जाते हैं, But then who cleanses? पर हमें कौन साफ करता है? Hallelujah. हालेलुया। Who cleanses? कौन हमें साफ करता है? Jesus, through ये- His word, He यीशु cleanses मसीह us. अपने वचन के द्वारा। And so symbolically, तो अगर चिन्ह के रूप में देखा in जाए the Old Testament, पुराने नियम in में the tabernacle, जो there would be a tabernacle था, basin to cleanse your hands and feet. तो उस तंबू में जाने से पहले वो हाथ और पैर साफ करने को And कहते you थे। know, on that basin, और आपको पता है वो जो बेसिन था there would be mirrors. उस पे शीशे लगे थे, There would be mirrors. उस पे शीशे लगे थे। And you know what? और आपको पता है क्या? Bible says, my word is the water and the mirror. और यीशु मसीह कहता है मेरा वचन वो जल है और वो शीशा है। So Jesus is showing the way. तो यीशु मसीह वो मार्ग दिखा And रहे हैं His way और जो उसका मार्ग है is first of all washing ourselves through His word. हम खुद को धोएं उसके वचन के द्वारा। When we allow Jesus' word, और जब हम यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते we हैं get washed. हम धोए जाते हैं। The same word, और वो ही वचन if we are allowing and reading in our life, अगर हम इसे ग्रहण कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं अपने जीवन is the में, mirror. वो एक आईना बन जाता है। Some ladies likes to use mirror. और कुछ महिलाएं हैं जो आईना इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। But you know, today's time, even men likes to use mirror. आपको पता है इस समय आज के जमाने में पुरुष को भी आईना And देखना बहुत some पसंद likes है। to use little longer than even ladies. और कुछ लोग पुरुष स्त्रियों से भी ज्यादा खड़े रहते हैं आईने के सामने। But Jesus is saying, पर यीशु मसीह कह रहे हैं do you have my word? क्या आपके पास मेरा वचन है? Is my word washing your feet? क्या आप मेरा वचन आपके पाँव को धो Because रहा है? if you do not, you have no part with me. अगर नहीं तो आपका मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। And I could imagine Peter saying, then I will follow your word till the death. तो मैं सोच सकता हूँ पतरस ने कहा होगा कि मैं तेरे वचन के पीछे अंत तक जाऊंगा He's saying, I'm going to follow your ways. और मैं आपके मार्ग के पीछे चलने वाला I'm हूँ going to follow you as my lifestyle. और मैं आपको अपनी जीवन शैली की तरह बनाऊंगा। That's what Peter was known for, bold out there. और जो पतरस था वो बहुत ही ज्यादा साहसी था, But inside he was also fearful. पर अंदर से वो डरता भी था। There are people, we look very bold from outside, but inside they are very fearful. और ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो बहुत ज्यादा साहसी लगते हैं, अंदर से डरते हैं। But Jesus' way is God's word. जो परमेश्वर का मार्ग है वो परमेश्वर का वचन He is है washing the disciples' feet. और वो चेलों के पाँव को धो रहा है। And Jesus said, if you want to be great, और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम महान होना you चाहते हो must wash one another's feet. तो तुम एक दूसरे के पाँव को धो। Does that mean literally we should have began the washing ministry? तो इसका क्या मतलब है कि हमें वो सेवकाई शुरू करनी चाहिए थी एक दूसरे के पैर धोने की? Then we would have done that this morning. तो शायद हमने वो आज सुबह किया होता, But what it really meant, पर उसका मतलब क्या था? that we would wash one another through God's word. कि हम एक दूसरे को धो सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। As we are going to the holy temple of God, let us wash one another through God's और word. जब हम परमेश्वर के उस पवित्र भवन की ओर बढ़ते हैं तो हम एक दूसरे को धो सके उस As we वचन are के द्वारा। approaching the last day, और जब हम वो अंत के समय की ओर बढ़ रहे हैं, let us reach out with God's word. हम परमेश्वर के वचन के पास पहुंचे। Is God's word giving your lifestyle? तो क्या परमेश्वर का वचन आपका जीवन शैली चला रहा है? Because Jesus' word would say, hey, wash someone else's feet. तो क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलेगा कि जाओ और किसी और के पाँव को धो। Jesus' word would challenge our so pride-rooted, self-centered rooted lifestyle. और शायद परमेश्वर का वचन जो है हमारे चैलेंज करेगा हमारा जो आत्म केंद्रित और घमंड से भरा हुआ जीवन शैली है। If we don't follow it, और अगर आप उसको के पीछे ना जाएं we won't see the mirror. तो हम वो आईना नहीं देख We पाएंगे won't have washing. और हमारे पास हम धो भी नहीं And सकेंगे because we don't have washing, और हमारे पास वो बेसन नहीं होगा। Jesus says, you have no part with me. तो यीशु मसीह कहेंगे कि तुम्हारा मेरे साथ कोई There's हिस्सा नहीं another है। way that Jesus is showing. और एक अलग ही तरीका है जो And it यीशु is मसीह दिखा रहे हैं। difficult to accept.
और ये बहुत ही मुश्किल है ग्रहण करना। Let me tell you, brothers and sisters, मैं भाई बहनों में आपको एक बात बताना we चाहता हूँ, don't like Jesus' way. हमें यीशु मसीह का जो मार्ग है वो पसंद नहीं We है। want to have our own ways. हम अपना मार्ग चुनना And चाहते हैं, that's the main sin, by the way. और वो सबसे बड़ा पाप है, Because as sheep, always turning our own ways. क्योंकि एक भेड़ की तरह हम अपने रास्तों में मुड़ जाते हैं। So our ways makes more sense for us, but Jesus' way, we think it doesn't make sense. और जो हमारा जो मार्ग है उसका हम ज्यादा अर्थ समझते हैं, पर जो मसीह का मार्ग है उसका अर्थ नहीं समझ But the पाते। end will decide which gives life and which doesn't. पर जो उसका अंत है उससे पता चलेगा कि क्या जीवन देता है और क्या मृत्यु। So it doesn't make sense. और हाँ, उसका कोई अर्थ नहीं होता। Then when Jesus said, if you follow me, pick up your cross. और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलते हो तो अपनी क्रूस को उठा लो। That's another way. और वो एक अलग मार्ग If you है। really want to have eternal life, अगर आप सच में अनंत जीवन चाहते हो then love your enemies. तो अपने दुश्मनों से प्रेम करो। Will that make sense? तो क्या इसका अर्थ है It कुछ? doesn't make sense. हाँ, हम उसको समझ नहीं पाते। Like that, वैसे ही there are many other things ऐसी बहुत सारी बातें will हैं not make sense. जिसको हम समझ नहीं But if पाएंगे। you just follow because it makes sense, पर अगर आप सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, you will be surprised तो आप अचंभित होंगे that you are on your own ways. कि आप अपने ही रास्ते में हैं। Because our ways we always do when it makes sense. हमारा रास्ता हम वही चुनते हैं जो हमें समझ आता है। So first of all, तो सबसे पहले Jesus wants to wash us यीशु मसीह हमें धोना चाहते from हैं sinful ways. हमारे पापी जीवन In से। fact, if you read Ephesians 5, अगर आप इफिसियों 5 पढ़ें, He wants to wash us and present us as blameless, वो हमें धोना चाहते हैं और हमें प्रस्तुत करना चाहते हैं निर्दोष, spotless. वो भी बिना किसी दाग के। Do you want that washing? क्या आप वो चाहते हैं कि आपको धोया Do जाए? you have the washing? क्या आप धोते हैं खुद को? Do you have a mirror that you see क्या yourself? आपके पास वो आईना है जिसमें आप खुद को देखते हैं? If you don't, अगर नहीं it's good to start. It's good to start. तो आप शुरुआत कर सकते हैं It's good to put God's word above everything. कि आप परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर रखें। Some people likes to follow traditional way. और कुछ लोगों को वो सारे रिवाज के पीछे चलना They पसंद say है। we know only this way. वो सोचते हैं कि ये रिवाज का रास्ता ही एक रास्ता है। And Jesus says surprising them. और यीशु मसीह उन्हें अचंभित करते हुए कहता Because है, some followed the way. पर कुछ लोग उस मार्ग पर चलते थे, They thought they are on the way. उन्हें लगता है वो सही मार्ग में हैं, But they were slightly derailed. पर वो थोड़ा सा चूक रहे थे Because they didn't know Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। One thing is to know from mind, another thing is to know from your heart. और एक जानना होता है जो आपके दिमाग से होता है और एक जानना होता है जो आपके हृदय से होता है। One thing is to read all these things and not follow. और एक चीज है कि आप ये सब पढ़ते हैं पर इसे मानते नहीं, Like Judas. यहूदा की तरह। Because we are going to the second point. क्योंकि हम दूसरे पॉइंट की तरफ जा You रहे can हैं। imagine आप सोच सकते हैं, Jesus washing Judas's feet. आप सोच सकते हैं उसने यहूदा स्कृति के And पैरों that को proves धोया। my point. हम्म? That proves my और वो point. इस चीज को साबित करता If है, it was just physically washing, अगर वो सिर्फ पैर शारीरिक तौर से धो रहा if होता, Jesus just wanted us to start washing ministry, तो अगर यीशु मसीह चाहते कि हम सेवकाई शुरू कर दे पैर धोने की, then why Judas still betrayed him? फिर भी क्यों यहूदा ने उसे धोखा दिया? Because there is a problem. क्योंकि वहाँ एक परेशानी है। Because one who was part of everything, एक व्यक्ति जो उस हर चीज का भाग था, Jesus exposes the truth. और यीशु मसीह सच को सामने लाते And हैं, here he is exposing the truth. और यहाँ पे वो उस सत्य को सामने लाते हैं। Not only Judas, सिर्फ यहूदा नहीं, but also Peter. बल पतरस भी। But there is difference. पर एक फर्क है, Judas, ये यहूदा, heart filled with trickery, उसका मन कपट से भरा हुआ था, treachery. कपट से। There is another, पर एक और है, heart filled with love.
उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ but था, weakness. पर उसके अंदर कमजोरी There थी। is difference. और ये फर्क है। And sometime, और कभी कभी, like I said earlier, पहले मैंने जैसे बोला, people think, लोग सोचते हैं oh, I really want to follow Jesus, कि मैं हाँ सच में यीशु मसीह के पीछे but चलना I चाहता am weak. हूँ, पर मैं कमजोर हूँ। Jesus knew that. यीशु मसीह वो जानते थे, That's why he exposed both. कि इसलिए यीशु मसीह ने दोनों चीजों को सामने लाया। And Peter, और ये पतरस, as that evening progressed, जैसे जैसे वो शाम बढ़ती जा रही थी, Jesus said, यीशु मसीह ने बोला, one out of you तुम में से एक will betray me. मुझे धोखा देगा। One out of you तुम में से एक will betray me. मुझे धोखा देगा। And I can see Peter, और मैं देख सकता हूँ पतरस को, because he's the one who will always be the first. और वो हमेशा सबसे पहले होता था। And he was so quick. और उसने जल्दी से पूछा, He said, उसने कहा, I will not be that one. मैं तो वो नहीं हूँ, I will love you till the end. मैं तुमसे अंत तक प्रेम रखूंगा। How many of you know what I'm talking? आप में से कितने जानते हैं मैं किस How बारे में many बात कर रही times our great promises not even last 5 minutes? हूँ। कभी कभी हमारे जो इतने बड़े बड़े वादे हैं वो 5 मिनट भी नहीं टिकते। You know, that's revealing the truth. और यही चीज सत्य है That our Savior knows us. कि हमारा उद्धारकर्ता हमें जानता That है, like Peter, कि पतरस की तरह too quickly, जो जल्दी से we put our faith in us. हम अपना विश्वास अपने ऊपर ले I will आते do हैं। it. मैं करूंगा, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, you can't do it on your own. तुम खुद से ये नहीं कर पाओगे, You need me. तुम्हें मेरी जरूरत है। But before that, पर उससे पहले Jesus revealed who is the one. यीशु मसीह ने प्रकाशित किया कि वो कौन है। Do you know how he revealed? आपको पता है उसने कैसे प्रकाशित किया? You read that story? आपने वो कहानी पढ़ी है? He took the bread उसने वो टुकड़ा लिया रोटी का, and he dipped it. उसने उसे डुबाया, And he said, the one who takes away this bread जो इस रोटी को ले लेगा is the one वो ही वो है who would betray me. जो मुझे धोखा देगा। I wonder what was going on to Judas. मुझे नहीं पता है यहूदा के मन में क्या All चल रहा this है। conversation happening in front of him, वो सारी वार्तालाप उसके सामने हो रही but थी, he doesn't know. पर उसे पता नहीं। And it is possible और हो सकता है because the heart is corrupted. क्योंकि हमारा जो हृदय है वो And दूषित you है। know, we've seen, in fact, theologically speaking, that moment it says the Satan entered in him. और आप देख सकते हैं उस वचन के अनुसार ऐसा कहता है कि जो शैतान है उसके अंदर आ गया। You know, many times we've seen those who are demonized, those who are under the full hold of Satan, जब they do हम- not even know what they are doing. जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं, पूरा उनको शैतान ने जकड़ रखा होता है, उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। And we know that at the very moment that he took the bread, Satan entered in him. और जैसे ही उसने वो रोटी ली, शैतान In उसके अंदर आ fact, गया। it's interesting why I say every word for John matter. It says, and it was night. और मैं इसलिए कहता हूँ यहोन्ना के लिए हर एक वचन जरूरी था क्योंकि Because it says in that verse, and it was night. और वो कहता है कि वो रात का समय था Because the darkness have entered. क्योंकि अंधकार का प्रवेश हो गया था। But let me tell you this. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, Have you experienced like this? क्या आपने कभी ये अनुभव किया है? Mama feeding 2 children and says, who loves me first, come and grab it, and one of them, I mean both of them will try for sure, but जब at least दो one will बच्चों take को it. मम्मी कुछ खिला रही होती है, कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो जल्दी से आए, तो दोनों भाग के आएंगे You खाने know के that, right? It's हम सब जानते fun, हैं। for fun the parents do. और वो मजे के लिए माता पिता करते हैं। And a lot of fun was happening around और Jesus. उस टाइम भी बहुत मस्ती मजाक हो रहा था। He would put his bread उनने उस रोटी को लिया and everyone would try to grab, but the one who will grab it, he will loves me. कि हर एक चीज, हर एक व्यक्ति उसे पकड़ना चाहता, पर जिसने पकड़ा वो मुझसे प्रेम करता है। But you see, externally, पर अगर हम बाहरी और तौर से देखें, Judas always did that. ये यहूदा ने हमेशा वो किया था। He said, whoever takes my bread, वो कहता है जो भी मेरी रोटी लेगा, in the scripture, वचन में whoever takes my bread, जो मेरी रोटी लेगा, verse chapter 13, verse 8. वो है 13 उसका 8वां वचन, He who ate my bread जिसने मेरी रोटी में से खाया has lifted his heel against me. उसने अपने पाँव को उठाया है मेरे विरुद्ध। The very one who was quick to show the love. और वो ही जो सब जल्दी से प्रेम दिखाना चाहता था,
But deep inside of him, पर अंदर गहराई में Jesus exposing the truth, यीशु ने खुलासा किया सच का he would put heel against me. कि वो मेरे खिलाफ पांव उठाएगा। What kind of person is this? और ये किस तरीका मनुष्य है? He will come to Jesus with ulterior motives. वो आएगा यीशु मसीह के पास, पर उसका जो मतलब होगा, उसकी जो इच्छा होगी वो कुछ और You होगी। can come to Jesus आप यीशु मसीह के पास आ सकते only हैं to take things, सिर्फ चीजें लेने के लिए, and we all come like that. और हम सब ऐसे आते हैं There's no doubt about that. और उसमें कोई शक नहीं है। But if we only come to only take His bread, His goodness, His gifts, और सिर्फ हम उसकी रोटी लेने, उसकी अच्छाई लेने, उसके उपहारों को लेने but आते हैं, not moved from the friendship that He shares, पर हमारा जीवन बदलता नहीं है उस दोस्ती के द्वारा जो उसने हमारे तरफ the बढ़ाई है, relationship that He desires, जो रिश्ता वो चाहता था, then we will fall in this category. तो हम इस कैटेगरी में आ That जाएंगे one day कि एक दिन we would put our heel against कि Jesus. हम अपने पाँव को उठा लेंगे यीशु मसीह के खिलाफ। What does that mean? उसका मतलब क्या है? It means इसका मतलब ये है that you are interested to take gift but not the giver. आप सिर्फ उस उपहार को चाहते हैं पर उपहार देने वाले को नहीं चाहते। You are interested in things but not the giver. आप उन चीजों को देने वाले, चीजों पे दिलचस्पी रखते हैं, उसके देने वाले में दिलचस्पी नहीं You see, रखते। the essence of holiness is not about very legalistic practices. और जो तर्क है पवित्रता का, वो सारी इस रिवाजों को पूरा करना नहीं है, But the essence of holiness is genuineness of your heart. जो तत्व है पवित्रता का वो है सच्चाई आपके हृदय की। Story of Jesus warns us. और यीशु मसीह की जो कहानी है वो हमें चेतावनी देती Not है। Jesus. Story of Judas यहूदा की जो कहानी हमें चेतावनी देती is a है, warning वो एक चेतावनी है हमारे that लिए। we can come to the giver and only be interested in gifts. आप देने वाले के पास आ सकते हैं और जो दे रहा है बस उसमें दिलचस्पी रख सकते हैं, And we must move from that place. और हमें उस जगह से हट जाना That चाहिए we join and receive His friendship. कि हम जुड़ सकें उसके साथ, उस दोस्ती को भी ले सकें, That we must love Him कि हम सब उससे प्रेम कर सकें because He died for us. क्योंकि उसने हमारे लिए मृत्यु ली। सही। Because we can take talents from Him yet miss on the giver. और हम उससे तोड़े तो ले सकते हैं पर देने वाले को हम से चूक सकते हैं। Like the person of 5 talents and the 1 talent. और उन लोगों की तरह जिसको 5 तोड़े मिले और जिसको 1 तोड़ा मिला। There are so many scriptures और ऐसे बहुत सारे वचन हैं that reveals जो दिखाते हैं that Judas was not really interested in friendship. यहूदा श्रुति उस दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं He रखता। was not really sitting there with longing and desire. उसके हृदय में कोई चाहत और कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। So this morning, इस सुबह Jesus is exposing it at our hearts. तो यीशु मसीह हमारे हृदयों का खुलासा कर रहा है। But there is Peter. पर वहाँ पे पतरस है, His heart is troubled. उसका हृदय चिंतित है। And now we know why. और हम Chapter जानते हैं 14 we read. हम 14वें वचन में पढ़ Do चुके not your हैं, hearts be troubled. अपने हृदय को व्याकुल मत हो, Because everyone is troubled. क्योंकि हर एक व्याकुल होता है। Who will be that person who will betray him? कि कौन है वो व्यक्ति जो उसे धोखा देगा। And Peter says, I will not betray you. तो पतरस कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। But Jesus knew him. पर यीशु मसीह उसे जानता He था, reveals or exposes the weakness of man. वो उसकी कमजोरी का भी खुलासा करता है। You and I are weak. हम और आप कमजोर हैं And we know we need Jesus as the source of life. और हम यीशु मसीह की जरूरत है एक जीवन के स्रोत की तरह। Because there is no life in only gift, but life in the giver. तो सिर्फ जो उपहार मिला है उसमें जीवन नहीं है, जो देने वाला है उसमें जीवन है। You and I can prepare sermon for someone else, but not have Jesus. आप किसी और के लिए अपना सरमन तैयार कर सकते हैं पर उसमें यीशु मसीह ना हो। You and I can function in the gift of worship, music, or whatever
yet not have Jesus. हम शायद उस वरदान में गाने के और आराधना करने के में कार्य कर सकते हैं, पर यीशु मसीह ना हो शायद उसमें। But Jesus is not interested in it. पर यीशु मसीह उसमें रुचि नहीं रखता। What he is really interested वो इस चीज में रुचि रखता है, is genuineness of our heart. आपकी हृदय की सच्चाई में। And so तो जो पतरस है, Peter's heart was genuine. तो पतरस का हृदय सच्चा था। He loved Jesus, वो यीशु मसीह से प्रेम करता था, but he was weak. पर वो कमजोर था। And Jesus does not pray for his testimony. और यीशु मसीह ने उसकी गवाही के लिए प्रार्थना नहीं Jesus की। didn't pray that Simon, Simon, remember Luke 22? आपको लूका 22 याद है जब वो कहता है शिमोन शिमोन? In Luke 13 we don't read और हम लूका 13 में ये नहीं पढ़ते that Jesus said, I have prayed for you. कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है। In in John we only read Jesus revealing that you will deny me 3 times. और हम यूहन्ना में ये पढ़ते हैं कि तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे, वो पतरस से बोलता But है। in Luke we know पर हम लूका में जानते हैं Jesus saying, यीशु मसीह कहते हैं, Simon, Simon, शिमोन शिमोन, I have prayed for your faith. मैंने तुम्हारे विश्वास के लिए प्रार्थना की है। Jesus did not pray for his testimony. यीशु मसीह ने उसकी गवाही के लिए प्रार्थना Did नहीं not करी pray for anything else. और किसी और चीज के लिए प्रार्थना नहीं करी। He said, I have prayed for your faith. मैंने तुम्हारी विश्वास के लिए प्रार्थना करी है, Because when you pass through the test, क्योंकि जब तुम परीक्षा से गुजरोगे। if you want that scripture, it's 22. Oh, I don't have reference. But it says, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail. और वो ऐसा कहता है कि शैतान ने तुम्हारे जीवन को चाहा है कि वो गेहूं की तरह तुम्हें झटक सके, पर मैंने तुम्हारी विश्वास के लिए प्रार्थना करी है। Jesus has prayed for your faith. यीशु मसीह ने आपके विश्वास के लिए प्रार्थना Because करी है, there is one weakness. क्योंकि एक कमजोरी है। It's not the matter of whether you really love Jesus. और ये इस बारे में नहीं कि आप सच में प्रेम करते हैं यीशु से या नहीं। You love Jesus. आप प्रेम करते हैं यीशु But से, your faith is shaken at times. कभी कभी आपका जो विश्वास है वो डगमगाने लग जाता And है। you know who is praying for your faith? और आपको पता है आपके विश्वास के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? Is Jesus praying for your faith? यीशु मसीह आपके विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा है। Jesus said, I prayed for you and your faith, और मैं यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे विश्वास के लिए प्रार्थना that करी you है may not fail. कि तुम हारो ना। Why is he praying for Peter? क्यों वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है? Because Jesus knew. क्योंकि यीशु मसीह जानता था, Peter didn't know. पर पतरस नहीं जानता था। In fact, he didn't believe the word of the Lord. बल्कि उसने विश्वास भी नहीं किया जो यीशु मसीह ने You बोला। see, we read the Bible, देखिए हम वचन पढ़ते हैं, but we don't believe the पर हम word उस- of the Lord. पर हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं रखते, And things happen. और फिर चीजें होती In हैं। the same way, और उसी तरह Peter said, I will not deny you. पतरस ने बोला मैं तेरा इनकार नहीं And करूंगा। he said, he did not believe the word of the Lord. तो ये सत्य था कि उसने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं किया। And when Peter denied Jesus, और फिर पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का। Bible says he wept. और फिर उसके बाद वचन कहता है कि वो बहुत रोया। He did not wept और वो सिर्फ रोया नहीं, because of he was losing his friend. क्योंकि वो अपने दोस्त को खो रहा था। He did not weep that Jesus is on the वो इसलिए नहीं रो रहा था कि he's caught, क्योंकि वो क्रूज पर है, but he did not believe in the word of the Lord. पर वो इसलिए रोया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया था। He was like, ouch, उसको ऐसा हुआ, आउच, I did not believe what was said. मैंने विश्वास नहीं किया जो मुझसे कहा गया। This morning, इस सुबह Jesus reveals both of the exposition. और यीशु मसीह ये दोनों खुलासे देते हैं। One warns us not to fall like Judas, और पहली चीज चेतावनी देता है कि हम यहूदा की तरह ना गिरें, who never had a heart in anything, क्योंकि उसका हृदय ही नहीं था किसी चीज में। who did not have a friendship with Jesus, उसकी कोई दोस्ती नहीं थी यीशु से। who only came for gifts. वो सिर्फ वरदानों के लिए आ रहा था। The second one, और दूसरा, who knowing the word जो वचन जानते हुए but not believing, पर उस पर विश्वास नहीं किया। not taking the word of the Lord. अब अगर हम वचन ले परमेश्वर का, But the third thing that Jesus do, पर जो तीसरी चीज है यीशु मसीह ने करी, what Jesus does is he reveals the true purposes of disciple. और वो आता है और वो जो सच्चा उद्देश्य है उसके चेलों का, उसे सामने लाता He है। has revealed the way,
उसने मार्ग को, He has exposed the truth. वो सत्य को लेकर आया। And now comes to the life. अब आता है हम जीवन पर। And so last point, तो जो आखिरी पॉइंट है, the true life तो जो सच्चा जीवन है is to know the Father. वो है पिता को जानना। And he begins this chapter that we read. और वो जब ये चैप्टर शुरू करते हैं वो ऐसा Let बोलता your है, hearts not be troubled. तुम व्याकुल ना हो, You believe in God. तुम परमेश्वर पर विश्वास You रखते हो, believe in me मुझ- also. मुझ पर भी विश्वास रखो। By believing in Jesus, यीशु मसीह पे विश्वास लाने you से will know the Father. आप पिता को जान लोगे। Remember, Jesus came to show the Father. यीशु मसीह आया कि वो पिता को दिखा सके। And so the one most important reason that you and I live और एक सबसे बड़े वजह जिसकी वजह से हम सब जीते हैं is to know the Father. कि हम पिता को जान सके। Is to know the Father so that where Jesus goes, क्योंकि हम पिता को जान सके कि जहाँ यीशु जाएगा, he goes on to say वो ऐसा कहता है that I am going to the Father और कि मैं पिता के पास जाता हूँ and I will make room for you और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ and you will be with me. कि तुम मेरे साथ रहो। Because here it is. क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा It's है, not I am taking you to the angelic host और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक स्वर्गीय जगह पर ले जा रहा because हूँ, you and I will reach there. क्योंकि हम और आप वहाँ जाएंगे। But the question is, तो सवाल ये है, will you reach to my Father's house with me? पर ये है सवाल कि क्या तुम मेरे पिता के घर में मेरे साथ पहुंचोगे? You know what? आपको पता है क्या, The reality, जो सत्य क्या है, we will all die. हम सबकी मृत्यु होगी। But the question is, तो सवाल ये है, will we go to the Father? क्या हम पिता के पास Because जाएंगे? if you read that chapter once again, that phrase once again, क्योंकि अगर आप इन शब्दों को फिर से पढ़ें, that when I go, I prepare place for you. और मैं जब जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करते हूँ। Verse 3, जो तीसरा वचन है, and I will come again and I will take you, और मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, so that where I am, कि you जहाँ will मैं भी also रहूं, be with me. कि मैं जहाँ रहूं वहाँ भी तुम मेरे साथ रहो। Because it is possible, कि हो सकता है we all to reach to heaven. हम सब स्वर्ग पहुँचे, We all to reach to that realm. हम उस जगह पर तो जरूर But पहुँचेंगे, will we reach to Jesus and be with him? क्या हम यीशु मसीह तक पहुँचेंगे और उसके साथ रहेंगे? And so life here on this side तो जो जीवन है इस तरफ, is to know the Father. कि हम पिता को जानें। And Thomas says, how will we know? और तो थोमा पूछता है हम कैसे जान सकते Philip हैं? says, at least show us the तो Father. फिलिपुस कहता है हमें कम से कम दिखा तो पिता कौन And है। Jesus said, how can you say that? और यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? If you know me, अगर तुम मुझे जानते हो, you know the Father. तुम पिता को जानते हो। You see, when we say Jesus is the way, the truth, and the life, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, Jesus is the reference point. तो यीशु मसीह वो केंद्र है। If we see Jesus, अगर हम यीशु को देखते we हैं, see the Father. हम पिता को देखते हैं। If we see Jesus, अगर हम यीशु को देखते हैं, how he functions, कैसे वो कार्य करता है, that's how Father functions. वैसे ही पिता भी कार्य करता है। If we see Jesus, अगर हम यीशु को देखते हैं, we must adapt his lifestyle. तो हमें उसके जीवन शैली की तरह जीना है। He was dedicated to his Father. और वो अपने पिता के लिए समर्पित था। He said, I live this life for the Father. वो कहता है कि मैं ये जीवन भी अपने पिता के लिए And जीता I हूँ give my life for the Father. और मैं अपना जीवन देता भी अपने पिता के There लिए is हूँ। one reason you and I live. एक ही वजह है जिसकी वजह से हम Is जीते to हैं, know the Father. कि हम उस पिता को जान सकें। And you know what? और आपको पता है I क्या? cannot say I know the Father. और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पिता को जानता Because हूँ, every day I see and I get to know something new about him. क्योंकि हर दिन मैं देखता हूँ और कुछ ना कुछ नया जान पाता हूँ पिता के Do बारे you में। know the Father? क्या आप पिता को जानते हो? On this side of heaven, क्योंकि ईश्वर की इस तरफ we get to learn to know him. हमें सीखना है हम कैसे उसे जाने, Because on the other side of the क्योंकि- eternity, क्योंकि दूसरी तरफ अनंत काल जीवन के, we will be with him क्योंकि हम उसके साथ रहेंगे forever. हमेशा के लिए। And guess what? और आप सोच सकते हैं On this side of the heaven, इस तरफ जो स्वर्ग के हैं, we have an opportunity हमारे पास अवसर है to also others that we should go to that room that God is preparing.
कि दूसरों को भी उस जगह पर लेके आए जब वो तैयार कर रहा Because है, in his house there are many rooms. क्योंकि उसके घर में बहुत सी जगहें हैं। Hallelujah. हालेलुया। So what is our true genuine purpose? तो हमारा सच्चा जो उद्देश्य क्या है? So that we may be with Father and we may have life. कि हमें पास जीवन हो और हम पिता के साथ रह सकें। Because there is no life outside the Father's house. क्योंकि कोई जीवन नहीं है पिता के घर के बाहर। Now you know why Jesus did what he did. अब आपको पता है यीशु मसीह ने क्यों किया जो उनने किया, Why he exposed what he exposed. उन्हें क्यों खुलासा किया जो खुलासा किया, And why he said, do not your heart troubles, I am making room for you in my और Father's तुम व्याकुल ना हो, मैं जगह बना रहा हूँ मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए। Because if we adopt Jesus' way, क्योंकि अगर हम यीशु का मार्ग ले लेते which हैं always leads to life, जो हमेशा जीवन की ओर ले which जाता may है, not make sense at और times, कभी कभी हम उसे समझ भी नहीं पाएंगे, but its end is always love and life. पर उसका अंत हमेशा जीवन और प्रेम It होता doesn't है, make sense और वो हमें समझ नहीं आता। for you to do what you are doing, हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे but you हैं, follow Jesus. पर हम मसीह के पीछे चलते हैं, It doesn't make sense और वो हमें समझ नहीं आता why serving team should come at 8 o'clock. क्यों सर्विंग टीम को 8 बजे आना है, Why should we serve? क्यों हमें सेवा करनी Why है, should we wash everyone's feet? क्यों हम दूसरों के पैर धोएं। In a way to be serving others. इसका मतलब ये है कि हम दूसरों की सेवा क्यों It कर रहे doesn't हैं, make sense. और हाँ उसका कोई अर्थ समझ नहीं आता। Why should we go to Kashipur? हमें क्यों काशीपुर जाना We है, are comfortable here. हम यहाँ आराम से रह रहे It हैं, doesn't make sense. कोई भी इसका अर्थ समझ नहीं पा I रहा। should be in abroad. शायद मुझे बाहर होना चाहिए, Why I अब्रॉड should में, go to Dehradun? क्यों मुझे देहरादून जाना है, It doesn't make sense. और उसका कोई समझ नहीं है हमें। Jesus' way will not always make sense, और यीशु मसीह का जो मार्ग है उसका हम हमेशा नहीं समझ but पाएंगे, will bring life. पर वो जीवन जरूर लेकर Are you आएगा। following Jesus as your lifestyle? क्या आप यीशु मसीह के पीछे अपनी जीवन शैली समझ कर चल रहे हैं? Is His word revealing your true condition of your heart? क्या उसका वचन आपके हृदय की जो अभी सही में परिस्थिति है वो चीज का Are खुलासा you कर रहा है? seeing the mirror every day? क्या आप उस वचन के आईने को हर रोज देख रहे हैं? Does God's word washing you every day? क्या परमेश्वर का वचन हर रोज आपको धो रहा है? Or you are like Peter, I will not let you wash. और या पतरस की तरह है कि मैं तुझे धोने ही नहीं दूंगा अपने पैर। Do you live a life that is connected in knowing the Father? क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो जुड़ा हुआ है पिता Or को you say, जानने में? hey, you know what, I have known everything. या आप कह रहे हैं कि मुझे सब पता है, Or we are not even interested in knowing the Father. या मुझे कोई रुचि ही नहीं है पिता को जानने Where में। do we sit? हम कहाँ पे हैं? Jesus is the way, the truth, and the life. यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और He is जीवन the है। सोर्स ऑफ लाइफ. और वो ही स्रोत है उस जीवन का। Outside of him there is no life. उसके बाहर कोई जीवन नहीं है। Let us close. हम बंद खत्म करेंगे This morning, let's close our eyes. और इस सुबह हम अपनी आंखों को बंद Bow our करें, heads. अपने सरों को झुकाएं, As we reflect और जैसा हम इस पर मनन करते हैं इस the बारे में, last words आखिरी शब्द जो भी यीशु and the मसीह के deeds of Jesus. और जो कार्य हैं यीशु मसीह के, He hung on the cross. कि वो क्रूस पर लटकाया He गया bled. और उसने खून बहाया He obeyed his Father. और उसने अपने पिता की आज्ञा मानी, He pleased his Father. उसने अपने पिता को खुश किया Even when it didn't make sense. जबकि जब उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा He है। followed the way वो उस मार्ग पर चला the Father that has set before him. क्योंकि पिता ने जो उसके सामने रखा था। This morning इस सुबह is the same Jesus वो यही यीशु है in our midst. हमारे बीच में। He knows we are weak. और वो जानता है हम कमजोर हैं। He reaffirms Peter's love. वो फिर भी पतरस के प्रेम को फिर से खड़ा करता है Peter felt like to give up, और पतरस को लगा कि मुझे हार ही मान लेनी चाहिए, that I will not stand. कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। Jesus said, यीशु मसीह ने I कहा, have prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है You will stand. कि तुम खड़े रहोगे, In fact, when you stand, बल्कि जब तुम खड़े होगे you will strengthen others. कि तुम दूसरों को भी सामर्थ्य This दोगे। morning इस सुबह is the same Jesus वो यही यीशु है speaking in your life. जो आपके जीवन पर ये बोल रहा Maybe you है। are sitting here. अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, You did not know him. आप उसे जानते नहीं हैं, Today, आज you can receive him
आप उसे ग्रहण कर सकते हैं in your life. अपने जीवन में। All eyes are closed. सारी आंखें बंद हैं। If you are hearing today this message अगर आप इस संदेश को आज सुबह सुन रहे हैं and the Lord is speaking to you, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, you don't have Jesus, आप यीशु मसीह को नहीं जानते, today is the opportunity आज ये अवसर है to know Him. उसे जानने का। If you want to give your life to Jesus, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते you हैं want to invite Him into your heart. और आप उन्हें निमंत्रित करना चाहते हैं अपने हृदय में, He says, I will come in your life वो कहता है कि मैं आऊंगा तुम्हारे जीवन में and I will bring life. और मैं जीवन को लेकर आऊंगा I will bring truth और मैं सत्य को लेकर आऊंगा and I will bring the way. और मैं उस मार्ग को लेकर आऊंगा। If you want to pray this prayer, अगर आप ये प्रार्थना बोलना चाहते हैं to invite Jesus in your heart, कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने हृदय में बुला सकें, you can pray this. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। Lord Jesus, यीशु मसीह, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ I need washing और मुझे धोए जाने की जरूरत है by your word. आपके वचन के द्वारा। This morning, इस सुबह I invite you मैं आपको निमंत्रित करता हूँ into my life. अपने जीवन में। I believe in you मैं आप पर विश्वास करता हूँ that you died for me कि आप मेरे लिए मरे and you rose और आप जी उठाए गए from death. मृत्यु से। Today you are alive आज आप जीवित हैं and I give my life to you. और मैं अपना जीवन आपको देता I हूँ repent और मैं पश्चाताप करता of हूँ my sins अपने पापों का and I receive you और मैं ग्रहण करता हूँ आपको as my Lord मेरे प्रभु के तौर पर and my Savior. और मेरे उद्धारकर्ता के तौर पर। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। If you are sitting this morning, और आप इस सुबह यहाँ बैठे हैं, there is another group एक और समूह है that needs to respond. जिसको ये प्रत्युत्तर देना है। You can pray to Jesus. आप प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह Lord, से, I'm sorry प्रभु मुझे क्षमा करें, that I may have gone far from your ways. शायद मैं आपके मार्ग से दूर चला गया था। There are many things that you say, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने मुझसे बोली sometimes hard to follow you. और कभी कभी कठिन था आपके पीछे चलना Doesn't make sense, और मैं समझ भी नहीं पाता था, but I'm sorry. पर मैं क्षमा मांगता हूँ, I have gone far away. पर मैं आपसे दूर चला गया था, Please bring me back. मुझे वापस ले आए। I love you, Lord. मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। Like Peter, पतरस की तरह I'm full of flaws मैं बहुत ही सारी कमियों से भरा हूँ because I'm not perfect. क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है। I repent. मैं धन्यवाद करता हूँ I repent. और मैं पश्चाताप करता हूँ। Forgive me, Lord, मुझे क्षमा करे प्रभु of going far away from the way, और मैं दूर चला गया उस मार्ग से, from the truth, उस सत्य से, from the life. उस जीवन से। Please forgive me, Lord. मुझे क्षमा करें। I want to come back to you. मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ And Lord, I pray, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ have your way in my life. आप अपने मार्ग को मेरे जीवन में लाएं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हुए इस सुबह? Today is Good Friday. आज का दिन गुड फ्राइडे है It's good because Christ is alive. और वो अच्छा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। It's not just a more festival, और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, but it's full of meaning पर उसका पूरा एक अर्थ है that everything Jesus did कि हर चीज यीशु मसीह ने करी has meaning.